Good morning, students. Class 4th, first chapter is numeration, and my this video on numeration is specially dedicated to my little ones who are not able to attend the regular classes in school due to corona. So the first chapter is numeration. In this chapter, first topic is digits or numeral. What do you understand by the digit or numeral? So to represent any given number, the symbol we used are known as numeral or digits. So the digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are the basic digit. First digit is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If we count, these are the total 10 digits. In numbers, these are the total 10 digits, or sometimes we called these as numeral. If I say ONE1, 1 कोई एक नंबर है, सो ONE1 इन वर्ड फॉर्म, इसको अगर मुझे न्यूमरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1. ऐसे ही अपन ने लिखा कि लेट अस सपोज ZERO 0. So what is the numeral for 0? Numeral for 0 is 0. Let us suppose if the word form is 2, then what is the numeral form or digit form? 2. This is a symbol to represent the number 2. Similarly, if we have to write 3 in word form, if we have given 3, then in digit form or in numeral form we will write the word THREE in digit form by this symbol, that is known as 3. ऐसे ही अगर आप मुझे 4 को लिखना है, then 4 in words form and in numeral form it will be 4 and so on. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 digits or numerals. Now the next is, what is the number? When we have given some digit and using the given digits, how many total arrangement we can make, that is called number. जैसे हमें दे रखा है कि एक डिजिट 0 है और दूसरा डिजिट 1 है. इन दोनों डिजिट को यूज लेकर के मुझे अगर कोई संख्या बनानी है या कोई नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं 1 के बाद 0 लिखता हूं तो दिस नंबर विल बी 10, और अगर 1 के पहले 0 लिखता हूं देन किसी भी डिजिट के पहले बिफोर अगर 0 मेंशन है, सो दिस बिफोर 0 विल यूजलेस, दैट इज मीनिंगलेस, एंड दिस विल बी ऑलवेज 1. सो यूजिंग 0 एंड 1, अगर 0 और 1 आपको दो डिजिट दे रखा है तो इन दोनों को डिफरेंट अरेंजमेंट करने पर जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड, जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड नंबर. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज अगर हमें एक डिजिट दे रखा है 1, 2, 3, दीज आर द 3 डिजिट. अब इन 3 डिजिट को यूज लेकर के मुझे डिफरेंट नंबर बनाने हैं. तो सबसे पहला नंबर तो बनेगा 123, दूसरा नंबर बनेगा 213, तीसरा नंबर बनेगा 321, चौथा नंबर बनेगा 312 एंड सो ऑन. वैसे हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं. सो व्हेन वी हैव गिवन सम डिजिट्स एंड यूजिंग दीज डिजिट्स इन डिफरेंट वे, व्हाटएवर द फॉर्मेट वी आर गेटिंग, दीज आर कॉल्ड नंबर. सो नंबर क्या होते हैं? बेसिकली डिजिट का डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हेन वी हैव गिवन एनी स्टैंडर्ड नंबर, देन हाउ मेनी टोटल डिफरेंट वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट ए गिवन नंबर. सो लेट अस सपोज वी हैव गिवन 400
69, एक कोई नंबर दे रखा है हमें, और इस नंबर को हम डिफरेंट तरीकों से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कितने डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हैं? सो देयर आर टोटल 4 ways to represent. So the basic, there are 4 basic ways to represent a number. So for example हमारे पास नंबर है 469 और बेसिक 4 वे जिनमें हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिक 4 तरीके हैं जिससे इस नंबर को हम लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहला फॉर्म है अबेकस फॉर्म। अबेकस फॉर्म, सो अबेकस फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक हम अबेकस बनाएंगे इस तरीके का, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप और तीसरी स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप विल रिप्रेजेंट the digit at ones, then the digit at tens, and then the digit at 100. Now इस नंबर में the digit at ones is 9, so we will make 9 bits in first strip, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then the digit at tens is 6, so we will make 6 bits, 1 2 3 4 5 and 6. Then digit at 100 is 4, so we will make 4 bits, 1 2 3 4. So this is the way of representing this number, that is in numeral form or standard form given, and in abacus form we can write in this way. Now the digit at ones is 9, digit at tens is 6, and digit at 100 is 4. So this is abacus form. First form is abacus form. Now second form is word form. So in word form कैसे लिखेंगे इस नंबर को? word form में 469. So this is the second form, word form. Then third is expanded form. Expanded form. In expanded form what we will do? First we will write the place value of digit at 100 place. So 100 place digit is 4, so its place value will be 400. Then the place value of the digit at tens is 6, so 60, and the place value of the digit at ones is 9, so this is 9. So this 400 plus 60 plus 9 is your expanded form. Then next fourth one is compact form. Compact form means when the number is given in expanded form, then we will write the compact form means what is the number for which expanded form is this. So ये किस नंबर का expanded form है? 469. So अगर expanded form को मैं joint form में लिख देता हूँ 469, then this one is known as compact form. So there are basic 4 ways to represent any given number. First abacus form, second one is word form, third one is expanded form, and fourth one is compact form. So and this one is also a particular form. Basically 469 इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ, लेट अस सपोज मैं 564 लिखता हूं, तो दिस 564 इज नॉन एज न्यूमरल फॉर्म. न्यूमरल फॉर्म और समटाइम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म. सो व्हेनेवर द नंबर इज गिवन इन न्यूमरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, we can represent that number in 4 basic form. First is abacus form, second one is word form, third one is expanded form, and fourth one is compact form. Now next topic is place value and face value. हमें अगर कोई नंबर दे रखा है और उसमें हमें गिवन नंबर में से किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू और अगर मुझे फेस वैल्यू निकालना है, then how we will write? So next topic is third, place value and face value.
इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 354। अब इस नंबर को अगर अपन काउंट करना चाहे, रीड आउट करना चाहे तो कैसे बोलेंगे? दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। सो दिस इज 300, 354। द गिवन नंबर इज इन वर्ड फॉर्म 354। रीड आउट कैसे करेंगे? 354। अब इस नंबर में फर्स्ट हमने लिखना है प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट विल बी डिफरेंट। कैसे? द डिजिट एट वंस, जो डिजिट वंस प्लेस पे है, अगर उसकी मुझे प्लेस वैल्यू लिखनी है तो डिजिट एट वंस इज 4। सो 4 की प्लेस वैल्यू 4 into 1, दैट विल बी 4। नाउ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 5। सो 5 की प्लेस वैल्यू 5 into 10, दैट इज 50। एंड द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3। सो इसका प्लेस वैल्यू 3 into 100, दैट इज 300। सो 4 का प्लेस वैल्यू 4 है, 5 का प्लेस वैल्यू 50 है और 3 का प्लेस वैल्यू 300 है। अगर मैं इसको 300 प्लस 50 प्लस 4 इस प्रकार के फॉर्म में लिखता हूं तो ये एक्सपांडेड फॉर्म है, और इसको जॉइंट फॉर्म में 354 लिख देता हूं तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अब हमें फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू इज ऑलवेज द गिवन डिजिट। सो अगर मुझे इसी क्वेश्चन में 354 में मुझे 4 का अगर फेस वैल्यू लिखना है तो जिस डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट की फेस वैल्यू इटसेल्फ डिजिट होता है। सो द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 इटसेल्फ। इसी प्रकार द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 इटसेल्फ। 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। वैसे ही द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। सो किसी भी गिवन नंबर में गिवन डिजिट का फेस वैल्यू इटसेल्फ डिजिट होता है। सो दिस वाज अबाउट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन न्यूमरेशन। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज very simple exercise, self practice exercise 1A. Question number first, write the place value of 5 in each of the following number. फर्स्ट नंबर दे रखा है A 315 में 5 की प्लेस वैल्यू, तो अपन क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। मैंने बताया था प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो डिजिट वंस प्लेस पे हैं उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 into 1, दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे अगर मुझे फेस वैल्यू 1 की निकालनी होती तो 1 into 10 करता तो 10 आ जाती। 3 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी तो 3 into 100 करता तो 300 आ जाता। सो 5 की प्लेस वैल्यू इसमें 5 है। दूसरा बी, सेकेंड क्वेश्चन 501 है। आप देखिए इसमें 5 कहां पर है? वंस, टेंस और 100। 500 प्लेस पे, सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 into 100, दैट इज 500। सो दिस इज प्लेस वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज 5108। सो दिस इज वंस, टेंस, 100 and 1000. So digit 5 is at the place of 1000. So place value of 5 into 1000, that is 5000. So इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू 5000 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, द गिवन नंबर इज 2570। सो सी 5 कहां पर है? वंस, टेंस, 100 and 1000. सो 5 इज एट 100 प्लेस, सो प्लेस वैल्यू विल बी 5 into 100, दैट इज 500. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500. So in this way we will write the
place value of the required digit in the given number. Then next question number second. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े पहले. राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना, पहला नंबर है 598. एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले 500 की प्लेस वैल्यू 500, देन 90 प्लस 8. Then question number second, expanded form of 304 is 300 plus 0 plus 4. Then next digit 2030. So 2000 plus 0 plus 30 plus 0. Then next one is 3457. So 3000 plus 400 प्लस 50 प्लस 7. सो हमने एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा? जो भी नंबर दे रखा है या तो आप राइट से प्लेस वैल्यू लिखिए या लेफ्ट से प्लेस वैल्यू. सो देखो राइट से देखेंगे तो 8 का प्लेस वैल्यू 8, देन 9 का प्लेस वैल्यू 90, देन 5 का प्लेस वैल्यू 500, बिकॉज ones, tens and 100. 5 is at 100, so 500. 9 is at tens, so 90, and 8 is at ones, so 8. Similarly, यहां देखिए ones, tens, 100 and 1000. So ones 7, tens 50, 100 400, 3000, because this is at 1000 place. So in this way we can write the expanded form of the given number. Now the question number 3. सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है. देन क्वेश्चन, राइट द कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म और न्यूमरल फॉर्म. सो फर्स्ट A is 50 plus 6. This is 56. B 750 plus 8, that is 758. Then third 9000 plus 800 plus 60 plus 1. So it will be 9861. Then D 8000 plus 70 plus 2. So it will be 8072. So these in left hand side, these are in expanded form, and in right hand side these are the compact form. So compact form means whenever the expanded form is given, we will write in standard, numeral or compact form. Then question number 4. Read the following number aloud and then write in numerals. Word form में दे रखा है. First is 3000, 512. देखो 3000 means 3, 500 means 5, 12 means 1 2. So 3512. You can write ones, tens, 100 and 1000. So अपन क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक बनाएंगे. 1000 की जगह 3, 100 की जगह 5, tens की जगह 1 and ones की जगह 2. So 3501. This is the correct answer. Now question number second, 4080. 4080. So write ones, tens, 100 and 1000. 1000 की जगह 4, 180. 80 means 0 8, so 100 plus is 0. So 4080. Then question number third part, 6006. Ones, tens, 100 and 1000. 6006. At the place of 6006, 6006. So this will be 6006.
6. So in this way, whenever word form is given, we can write the standard form or numeral form. Then next question number 5. Write the following number in words form. Words form क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 6009. So 6009 कैसे पता चला? वंस, टेंस, 100 एंड 1000. देखो 10 एंड 100 की जगह 0, वंस 9 है, 6009. सेकेंड क्वेश्चन 3871. वंस, टेंस, 100, 1000. 3871. 3871. So when the given number in numeral or standard form, we can write in this way, in words form. Next question, write the greatest and smallest 4-digit number. 4-digit smallest. 4-digit smallest is 1000. Ones, tens, 100 and 1000. 1000 is 4-digit smallest. Now greatest will be 9999. So this is the 4-digit smallest and this is the 4-digit largest, or we can say greatest. Then question number 7. This was question number 6. Okay. Then question number 7. Fill in the blanks with correct, greater than, less than or equal to. These 3 symbols we have to use. Question number 7. First one is 3632. 3632. Both the number are equal, so we will put equality. Then next is 3792. 3972. 3792. 3972. So this one is the greater number. So we will use here this. Then third one is 110. 1011. 1101. This is 1011. So this is greater than this number. Then fourth one 3204. 3242. This is 3204. This is 3242. So this one is the greater. Then the predecessor of the smallest 3-digit number. Smallest 3-digit number. First smallest 3-digit number is 100. Now इसका predecessor का मतलब just one less. तो 100 में से जस्ट 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 99. और अगर 99 और 100 के बीच में अगर हमें सिंबल यूज लेना है तो 99 इज लेस देन 100. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Form the largest and smallest number using each of the following digit. So first one is 5326. इन डिजिट को यूज लेकर के हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और एक ग्रेटेस्ट लिखना है. स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे डिजिट को. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6532. ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा लिखा हमने. ग्रेटेस्ट लिखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6532 और
स्मॉलेस्ट लिखने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो 2 3 5 6, सो स्मॉलेस्ट इज 2356 और ग्रेटेस्ट होगा 6532। सो ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और ग्रेटेस्ट लिखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो नेक्स्ट 3874, दीज आर द 4 डिजिट। इन 4 डिजिट को यूज लेकर के स्मॉलेस्ट का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो 3478 और ग्रेटेस्ट लिखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सो 8743 8743। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, write the following number in ascending order. Ascending order means we have to write in increasing order. So ascending or increasing, the same thing. बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। So this is called increasing order. So increasing order के लिए सबसे पहले 735, then 1598, then 2013, then 3619 and then 6354. So these number are in ascending or increasing order. And the last question, question number 10, decreasing order. Write the following in decreasing or descending. Descending or decreasing, सेम थिंग। डिसेंडिंग वर्ड बोलो चाहे डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में अपन क्या लिखेंगे, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटों को सबसे लास्ट में। सो हियर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर है, आउट ऑफ एक नंबर है 8000 की सीरीज में, सो 8120 इज द ग्रेटेस्ट, देन 6297 उससे छोटा, देन 5683 उससे छोटा, देन 4091 उससे छोटा एंड सबसे छोटा 1387। So this was the about the numeration and application. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.